ایک کہانی حصہ 58 یرمیہ حصہ اول اور آب حیات کے منبع خداوند کو ترک کرنا۔ یرمیہ پہلا باب تا 39 باب۔ نبیوں کی دوسری کتاب یرمیہ طوالت میں یسایہ کے بعد دوسری طویل ترین کتاب ہے، لیکن حجم میں سب سے طویل کتاب ہے۔ یسایہ کی کتاب کی طرح یرمیہ کی کتاب کو سمجھنا آسان نہیں ہے، تاہم ایک کہانی کے بہاؤ کے ساتھ خدا کی حتمی ملامت اور خدا کی خود مختار نجات کی وزارت اور آخر میں یسوع مسیح کو جو مسیحا بن کر آئے گا ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ مشکل نہیں ہے کہ اگر نبیوں کا بہاؤ پہلے اس وقت آگے بڑھتا ہے جب خدا اپنے لوگوں کے گناہوں کی اصلاح کرتا اور گناہوں کے مطابق سزا دیتا، اور پھر وقت پر سرفرازی ہوتی ہے جب خدا کے لوگ توبہ کرتے ہیں اور خدا نجات کی تکمیل کرتا ہے۔ اگرچہ اس ساخت کو متعدد بار دہرایا گیا ہے، لیکن یہ جرم، سزا، تکلیف، توبہ، نجات، امن اور پھر جرم کے عدالتی دور کا مظہر ہے۔ تاہم یسایہ کی طرح یہ چکر ایک پیچیدہ اور مخلوط ترتیب میں دہرائے جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، جب خدا نے اپنے لوگوں کے جرائم پر سرزنش کی اور انہیں نجات کے منصوبے کے بارے میں بتایا، حالانکہ انہوں نے ابھی تک توبہ نہ کی، پھر انہیں ملامت کی اور ان کے جرائم کے لیے ایک سزا کا اعلان کیا، اور پھر اچانک نجات کی وزارت اور مسیحا نجات جو خدا کے ساتھ بطور موضوع پوری ہوگی کا انکشاف کیا، اور لہٰذا یہ ترتیب بھی طے نہیں ہے۔ نسبتاً خدا کے لوگوں کے گناہوں کی سرزنش کے بہت سارے مشمولات ہیں، اور ان گناہوں کے لیے صرف خدا کی سزا ہے، تاہم خدا کا دل ان کے لیے توبہ کرنے اور واپس آنے کا ہے، اور بعض اوقات لوگوں کی توبہ کے مناظر ملے جلے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ خدا کا خدا بننے کا اعلان، نجات کی وزارت جو خدا بطور موضوع پیدا کرے گا، اور خدا کی نجات جو آخر کار مسیح کے ذریعے حاصل ہوگی، نبیوں کی کتاب کی ایک اور محور تشکیل دے گی۔ لہٰذا یہاں تک کہ اگر انبیاء کو پڑھتے ہوئے ترتیب بدلتی ہے تو بھی آپ کو اس سے متعلق موضوع نہیں کھونا چاہیے۔ لہٰذا نبیوں کی کتاب کو پڑھتے ہوئے چاہے ترتیب بدل جائے، ہر عنوان سے متعلقہ مواد کو کھونا نہیں چاہیے۔ آخری سوال یہ ہے کہ خدا نے انبیاء کی کتابیں اس بے نقاب ساخت میں لکھنے کی اجازت کیوں دی؟ اس کا مطلب ہے، اول، خدا کا حتمی مقصد فیصلہ نہیں ہے۔ خدا کے انصاف کی وجہ سے فیصلے کی پیروی یقینی طور پر ہوگی، فیصلے کی وجہ سے تباہی ہوگی، پھر بھی تباہی بحالی کی بنیاد ہوگی، نہ کہ ہلاک کرنے کی۔ اور جب تک اس فیصلے تک پہنچ نہیں جاتے، خدا ہمیں توبہ کرنے اور واپس آنے کی تاکید کرتا ہے، اور وہ ہمیں امید دیتا رہتا ہے کہ خدا اس تباہی کے بعد یقیناً ہمیں بچائے گا۔ دوسرا، خدا کے لوگوں کے لیے اپنے طور پر زندہ خدا کے پاس واپس آنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ خدا نے توبہ کے لیے زور دیا، اور خدا کے لوگوں نے بھی عارضی طور پر توبہ کی، لیکن کوئی حتمی تبدیلی نہ ہوئی۔ گناہ دہرایا گیا اور گناہ کی سزا محض اور بڑھ گئی۔ لہٰذا اس گناہ کا بنیادی حل یہ ہے کہ خدا جو انصاف کا موضوع ہے خود ہی اس کا فدیہ دیتا ہے۔ اسی لیے خدا گناہوں کی نشاندہی کرتا ہے اور گناہ کی قیمت بتاتا ہے، لیکن بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کا جو سزا پانے کے باوجود بھی بحال نہیں ہوں گے موضوع بنے گا، اور یہ راستہ یسوع مسیح مسیحا کے ذریعے نجات پائے گا، جو راہ اور حق اور زندگی بن کر آئے گا۔ نبیوں کی کتاب کی نوعیت کے مطابق ماضی کی بنیاد پر جب پہلے ہی جو گناہ ہو چکے ہیں، خدا نے ان کے گناہوں کا انکشاف موجودہ وقت میں کیا، ان گناہوں کے مطابق سزا کا اعلان کیا، اور اب آئندہ کی نجات کا اعلان کرتا ہے۔ خاص طور پر یرمیہ کی کتاب اعلان کرتی ہے کہ خدا کے لوگ بابل کے ذریعے تباہ ہو جائیں گے، لیکن وہ تباہی خاتمہ نہیں ہے، بلکہ خدا کی بادشاہی میں دوبارہ رہنے کے لیے دنیا کی امید کا خاتمہ ہے۔ یرمیہ کا تاریخی پس منظر۔ یرمیہ کے پورے ریکارڈ کے وقت کا انکشاف کرتے ہوئے یرمیہ کہتا ہے، جس پر خدا کا کلام شاہ یہودا یوسیہ بن امنون کے دنوں میں اس کی سلطنت کے 13ویں سال نازل ہوا۔ شاہ یہودا یہویکیم بن یوسیہ کے دنوں میں بھی شاہ یہودا صدقیہ بن یوسیہ کے 11ویں سال کے تمام ہونے تک، اہل یروشلم کے اسیری میں جانے تک، جو 5ویں مہینے میں تھا، نازل ہوتا رہا۔ جب یرمیہ نے خدا کی طرف سے ایک پیشن گوئی سنی تو یہ یوسیہ کے بادشاہ بننے کا 13واں سال تھا۔ یوسیہ بادشاہ 8 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور 31 سال تک بادشاہ رہا۔ بادشاہ کی حیثیت سے اپنے 8ویں سال میں اس نے اپنے آباء و اجداد داؤد کے خدا کی تلاش کی۔ 12ویں سال میں اس نے اونچی جگہوں، یسیرتوں،
खोदी हुई मूर्तों को हटाया और शबीहों को ढा दिया, और बादशाह के सामने हजूम ने बाल के मज़बों को मिस्मार कर दिया। यूसिया बादशाह ने बखूर की कुर्बान गाहों को जो उसके ऊपर थी टुकड़ों में काट डाला, यसीरतों, बुतों और शबीहों को तोड़ डाला, टुकड़े टुकड़े किए और उन लोगों की कब्रों पर बखेर दिया जिन्होंने उनके लिए कुर्बानियां गुजरानी। काहिनों की हड्डियां उनकी कुर्बान गाहों पर जला दी। यहूदा और यरूशलेम को पाक किया। मनस्सी, इफ्राइम और शमौन के शहरों में जहां तक नफ्ताली है और उनके आसपास के खंडरात में उन्होंने मज़बों और यसीरतों को ढा दिया और बुतों को पीस कर राख बनाया और तमाम इसराइल में बखूर के मज़बों को काट डाला। 18वें साल में खुदा की हैकल की मरम्मत करते हुए यूसिया बादशाह को शरीयत की किताब मिली, और जब उसने शरीयत का कलाम सुना तो उसने अपने कपड़े फाड़े और खुदा का कलाम खिल्दा नबिया से सुना, जिसने कहा, खुदावंद यूं फरमाता है, देख मैं इस जगह पर उसके बाशिंदों पर आफत लाऊंगा, यानी सब लानतें जो इस किताब में लिखी हैं, जो उन्होंने शाही यहूदा के आगे पड़ी है, क्योंकि उन्होंने मुझे तर्क किया और गैर माबूदों के आगे बखूर जलाया और अपने हाथों के सब कामों से मुझे गुस्सा दिलाया। सो मेरा कहर इस मकाम पर नाजिल हुआ है और धीमा ना होगा। खुदा का अजाब पहले ही शुरू था। बहरहाल यूसिया बादशाह ने अपनी इस्लाह की पूरी कोशिश की, अगरचे ये इस्लाह तमाम बनी इसराइल को वापस नहीं लाई, और इस इस्लाह के बाद ना तो बादशाह और ना ही लोगों ने खुदा की मुकम्मल खिदमत की। हम पहले ही देख चुके और जानते हैं कि यसाया नबी के वसीले खुदा की निजात बाकी रह जाने वाले लोगों के जरिए पूरी होगी, और ना कि हर एक से यूसिया बादशाह मर गया और उसके बेटों और पोतों ने यहूदा के जवाल तक बादशाह की हैसियत से हुक्मरानी की। यूसिया बादशाह के 4 बेटे योहनान, यहूयकीम, इल्याकीम, सिदकिया और यहोआखज सलूम थे। ऐसा लगता है कि उनमें से योहनान जल्द ही फौत हो गया था। यर्मिया नबी की पेशनगोई का आगाज यूसिया की हुकूमत के 13वें साल में हुआ। यूसिया बादशाह के बाद लोगों ने उसके 4 बेटों में से चौथे यहोआखज को बादशाह मुकर्रर किया, और यहोआखज को सलूम भी कहा जाता था। यहोआखज तख्त पर चढ़ा और खुदावंद की नज़र में बुराई की। 3 महीनों के बाद मिस्र के बादशाह की तरफ से माजूल हुआ, और यूसिया बादशाह का दूसरा बेटा यहोयकीम मिस्र के बादशाह के जरिए बादशाह बना। यहोयकीम का असल नाम इल्याकीम था, लेकिन मिस्र के बादशाह ने उसका नाम बदलकर यहोयकीम रख दिया। यहोयकीम ने 11 साल तक जनूबी यहूदा पर हुकूमत की, और इस अरसे में उसने भी पिछले बादशाहों की तरह खुदा के हजूर बुराई की, बुतों की पूजा की और नबियों को सताया। उसने लोगों को उरिया नबी को पकड़ने और मारने के लिए मिस्र भेजा, और उस तोमार को जिसमें खुदा के कलाम का रिकॉर्ड था कलम तराश से काटा और उसे आग में जला दिया। इसके अलावा उसने लोगों से बहुत सारा बेगार इकट्ठा किया, उसे मिस्र के बादशाह को दिया और उस पर एक आसाइश महल बनाया। 3 साल तक बाबिल को खराज देने के बाद यहोयकीम ने बाबिल के साथ गद्दारी की। बाबिल के बादशाह नबूकदनजर की तरफ से हमला हुआ और उसे जंजीरों से बांधकर बाबिल ले जाया गया। उसके अलावा हैकल के ज़रूफ भी छीन लिए गए। ये पहला बाबली हमला है। तब यहोयाकीन बाबिल के बादशाह की तरफ से बादशाह हुआ। यहोयकीम का बेटा यहोयाकीन यकोनिया और कोनिया के नाम से भी जाना जाता है। वो 18 साल की उम्र में बादशाह बना, और तकरीबन 3 माह के बाद उसे बाबिल के बादशाह की तरफ से माजूल कर दिया गया। असीर करके बाबिल को ले जाया गया। बाबिल के बादशाह ने यहूदा पर हमला किया, और यहोयाकीन, उसकी माँ, नौकरों, अमीरों, ओहदेदारों, जंग करने वाले मर्दों, कारीगरों और लोहारों को पकड़ लिया। इस वक्त हिजकियेल नबी को भी पकड़ा गया। इसके अलावा शाही महल के तमाम खजानों और हैकल के बर्तनों में से सब कुछ ले लिया गया, कुछ भी ना छोड़ा। ये दूसरा बाबली हमला है। यहोयाकीन को बाबिल ने पकड़ लिया और तकरीबन 37 साल तक कैद में रखने के बाद रहा किया गया, यहाँ तक कि उसने अपने बाप यहोयकीम का अंजाम देख लिया। फिर भी बुतों की पूजा की, नबियों को सताया और लोगों से बदसलूकी की। बाबिल के बादशाह ने यहोयाकीन को असीर बनाकर बादशाह यूसिया के तीसरे बेटे सिदकिया को बादशाह बना दिया। सिदकिया ने 11 साल तक हुकूमत की, लेकिन उसने भी खुदा को तस्लीम नहीं किया और मिस्र पर भरोसा किया। लिहाजा बाबिल के बादशाह ने यहूदा पर हमला किया, सिदकिया को पकड़ा, सिदकिया की आंखों के सामने उसके बेटों को मार डाला, सिदकिया की आंखें निकाल डाली, जंजीरों से उसे जकड़ा और उसे बाबिल ले गया। बाबिल की फौज ने नौजवानों को बेरहमी से हलाक किया और यहाँ तक कि खवातीन और बूढ़ों पर भी रहम ना किया। उन्होंने हैकल के सतूनों, बर्तनों, प्लेटों और खजानों और बादशाह और सरदारों के खजानों पर कब्जा कर लिया और उन्हें बाबिल ले गए। उन्होंने दीवारें मिस्मार की, हैकल और शाही महल जला दिए और कीमती बर्तनों को भी तबाह कर दिया। उन्होंने हजारों अफराद को गिरफ्तार किया और गुलाम बना लिया, लेकिन वो फारस के बादशाह खौरस के जरिए असीरों की वापसी तक वापस नहीं आए।
चुनाचे यरूशलेम और यहूदा की सरजमीन 70 साल तक तबाह व बर्बाद रही। यह बाबल का तीसरा हमला और यहूदा और यरूशलेम का जवाल था। सिदकिय्याह बादशाह और इसराइलियों दोनों को यिर्मयाह नबी की तरफ से बताया गया था कि वो मिस्र पर भरोसा ना करें और बाबल के सामने हथियार डालें, लेकिन उन्होंने ना सुना। वो अपनी गर्दनें सीधा करते हुए खुदावंद की तरफ ना लौटे। अगरचे यिर्मयाह नबी ने अनगिनत बार मुतनबा किया था कि वो खुदा की तरफ लौट आए, काहिनों और लोगों ने भी गुनाह किया। उन्होंने बुतों की पूजा की और हैकल को नापाक किया। नबियों के जरिए उन्हें मुस्तकिल तौर पर खुदा की तरफ लौट जाने की ताकीद की गई, लेकिन इसके बजाय उन्होंने खुदा के अंबिया का मजाक उड़ाया और उनके कलाम का मजाक उड़ाया, लान तान की और जुल्म किया। इस तरह जनूबी यहूदा फतह हुआ और बाबल के बादशाह नबूकदनजर ने 3 बार असीर किया। पहली असीरी यहूयाकीम के दौर में, दूसरी असीरी यहूयाकीन के दौर में और तीसरी सिदकिय्याह के दौर में की गई थी। अब हम यिर्मयाह की तरफ जाते हैं। खुदा के लोगों का क्या गुनाह है? यिर्मयाह ने पहले खुदा के लोगों के गुनाहों की निशानदेही की। वो खुदा को नहीं जानते थे, बुराई करने में माहिर थे, पर नहीं जानते थे कि अच्छाई कैसे करें। खुदा को तस्लीम ना किया, इंसान पर यकीन रखते थे, जिस्मानी तौर पर अपनी ताकत बनाई, अपने दिलों को खुदा से दूर किया, खुदा की बात ना मानी, खुदा के आइन को नहीं जानते थे, खुदा की शरीयत को तर्क किया और खुदा की आवाज़ की तामील नहीं की, खुदा को तर्क किया और खुदा की शरीयत की तामील नहीं की, खुदा के शरीयत की पैरवी नहीं की और खुदा के अहकामात और खुदा के आइन की तामील नहीं की। उन्होंने खुदा का डर भी नहीं रखा, यहाँ तक कि ये भी नहीं कहा कि उन्हें खुदा से डरना चाहिए। खुदा को भूल गए और खुदावंद को तर्क किया, खुदा की तलाश नहीं की, खुदा को धोखा दिया, इंसाफ पर अमल नहीं किया, हक के लिए तलाश नहीं की और दूसरे माबूदों की पूजा की। नेज़ नबी ने झूठी पेशनगोई की, काहिनों ने अपनी ताकत से हुक्मरानी की और लोगों ने अंबिया और काहिनों की बदी की हमायत की। नबी और काहिन सब ही बदकार थे, मकरूह हरकतें करते हुए शर्म महसूस न करते, खुदा से बरगश्ता हुए, मकर पर इसरार किया, वापस आने से इनकार किया और कहा हम अपने मंसूबों पर चलेंगे और हर एक अपने बुरे दिल की सख्ती के मुताबिक अमल करेगा। उन्होंने अपने दिलों का खतना नहीं किया। खुदा के लोगों के गुनाहों के लिए खुदा की सजा। खुदा ने अपने लोगों के गुनाहों की सजा का ऐलान किया। खुदा तमाम गुनाहों की सजा देगा, अदालत करेगा, उन्हें उल्टा गिराने की सजा देगा, कोई रहम नहीं करेगा। खुदा का चेहरा गुस्से में उनकी तरफ मुड़ेगा और बरकत नहीं देगा। उन पर वबा, अफई और जहरीले सांप भेजेगा जिन पर जादू के जरिए काबू नहीं पा सके। नागदोना खिलाया और उन्हें अंदराइन का पानी पीने पर मजबूर किया। वो तलवारों, काल और वबाओं से तबाह हो जाएंगे और झूठे नबी तलवार और काल से हलाक हो जाएंगे। उन्हें तलवार से कत्ल होने और कुत्तों से फाड़े जाने और हवा के परिंदों और ज़मीन के दरिंदों से निगले जाने और तबाह होने की सज़ा दी जाएगी और उन्हें ज़मीन की तमाम ममलकतों के लिए नागवार बनाएगा। और खुदा ने कहा कि यह तबाही उन पर आई क्योंकि उन्होंने गुनाह किया, उसकी अतायत नहीं की या उसकी शरीयत या अहकामात या माहदों पर अमल नहीं किया, लिहाजा खुदा ने उनको तर्क कर दिया। उसने कहा कि वो सबसे पहले वीरान होंगे, तबाह नहीं किया जाएगा, बल्कि खुदा ने कहा कि मैं तुमको बिल्कुल फरामोश कर दूंगा और तुमको और उस शहर को जो मैंने तुमको और तुम्हारे बाप दादा को दिया अपनी नज़र से दूर कर दूंगा और मैं तुमको हमेशा की मलामत का निशाना बनाऊंगा और अब्दी खजालत तुम पर लाऊंगा जो कभी फरामोश ना होगी। ना शफकत करूंगा, ना रायत और ना रहम करूंगा कि उनको हलाक ना करूं। तुझे मुनासिब तंबी करूंगा और हरगिज बेसजा ना छोड़ूंगा और उन्हें तबाह करूंगा। नेज़ खुदा उनको बखेर देगा और तलवार से उनका पीछा करेगा और यहाँ तक कि वो तबाह हो जाएं। उन पर हाथ बढ़ाएगा और उन्हें तबाह करेगा, रहम का मुजाहरा नहीं करेगा और बिल आखिर अगर वो खुदा से फरियाद करें तो भी खुदा नहीं सुनेगा। खुदा उस चरवाहे से नाराज रहेगा जिसने रेवड़ को तबाह किया और परागंदा किया। उन लोगों के खिलाफ होगा जो उसकी बातों को चराते और उसके लोगों को धोखा देते हैं। यहूदा के शहरों को रहायशियों के बगैर खौफनाक बंजर ज़मीन बनाएगा। ये सारे मुल्क वीरान हो जाएंगे। ये कौमें 70 साल बाबल के बादशाह की खिदमत करेंगी, ये कहते हुए कि खुदा दुनिया की कौमों में फिर बखेरेगा। खुदा ने वापस आने का कहा। खुदा ने मुसलसल अपने लोगों के वापस आने के लिए भी कहा। खुदा ने खुदा के बंदों नबियों को मुस्तकिल मजाजी से और मुसलसल भेजा, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। बहरहाल खुदा ने कहा, इसका मतलब ये है कि सिर्फ खुदा ही सच्चा है। खुदा ने ऐलान किया कि मैं सच्चा खुदा हूँ, मेरा नाम रब्बुल अफवाज है। अपना हाथ और अपना जोर उन्हें दिखाऊंगा
تاکہ وہ جان لے کہ میرا نام خداوند ہے جس نے سمندر کی حدود کو قائم کیا۔ خدا نے دن میں روشنی کے لیے سورج اور چاند اور ستاروں کو، رات کو روشنی کے لیے دیا، اور سمندر کو معجزن کیا جس سے اس کی لہریں شور کرتی ہیں۔ میں خداوند تمام بشر کا خدا ہوں، میرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ خدا جو پورا کرتا، بناتا اور قائم کرتا ہے، اسی نے اپنی قدرت سے زمین کو بنایا، اسی نے اپنی حکمت سے جہان قائم کیا اور اپنی عقل سے آسمان کو تان دیا ہے۔ وہی قادر مطلق خدا ان کا شوہر اور باپ تھا۔ خدا نے پکارا اور وہ میری نو بیہتا جوڑے کی محبت کو یاد کرتا ہے۔ برگشتہ اسرائیل واپس آ، برگشتہ لوگوں واپس آؤ۔ اے اسرائیل اگر تو واپس آئے، اے اسرائیل اگر تو میری طرف واپس آئے تو تم سب اپنی اپنی بری راہ سے اور اپنے برے کاموں سے باز آؤ۔ اے میرے لوگوں، اس میں سے نکل آؤ اور تم میں سے ہر ایک خداوند کے قہر شدید سے اپنی جان بچائے۔ میری سنو، اب تم اپنی روش اور اپنے اعمال کو درست کرو اور خداوند اپنے خدا کی آواز کے شنوا ہو۔ مجھے پکارو اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تم نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ مجھے جاننے اور سمجھنے سے میں خوش ہوں۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے، جس کی امیدگاہ خداوند ہے۔ اپنی بدکرداری کا اقرار کر، اپنے دل کو شرارت سے پاک کر، اپنا ختنہ کراؤ، ہاں اپنے دلوں کا ختنہ کراؤ۔ تاریخ کی کتابیں، شاعری کی کتابیں اور یہاں تک کہ اناجیل کا ریکارڈ بھی ایک جلد میں بائبل کے پورے بہاؤ کا اظہار نہیں کر سکتا ہے۔ اگرچہ یسایہ اور یرمیہ کی کتابوں کی لمبائی اور حجم سب سے زیادہ ہے، لیکن آنے والے مسیحا یسوع مسیح کا انکشاف انبیاء کی آنے والی کتابوں میں مزید تفصیل کے ساتھ ہوگا۔ اب یرمیہ کی کہانی جو فیصلے اور نجات کا اعلان کرتی ہے، اور یسوع مسیح کی کہانی جو تیزی سے سامنے آ رہی ہے، جاری ہے۔